Hello students, now I am going to continue with the chapters of application of derivative of 12th standard. Exercise 2.2 question number 2, which is related to the approximations. So this type of examples are also asked in your physics and chemistry numericals. So for that concern, this is very important concept. So question is, find the approximate value of the following. So see, the first question is sine 61 degree. Now see, the example given you, that is value you have to find out is sine 61 degree, and you are given that 1 degree is equals to 0.0174 radian, and also you are given the value of root 3, that is 1.732. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एज यूजुअल इन प्रीवियस एग्जाम्पल्स. So we have to consider this is as a x. So x is equals to 61 degree, where we can split up this 61 like 60 degree and 1 degree. ठीक है, and x is nothing but the a plus h. So we have to put down the value for x as a plus h. So a is 61 degree and h is 1 degree. So यहाँ पे मैंने split up करके लिखा है, a is 61 degree and h is 1 degree. And 1 degree is nothing but you are given in the, that is the value is given in the example, that is 0.0174 radian. तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है. Now see, हमें जो फंक्शन दिया है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ साइन एक्स. ये जो है जहाँ पे मैंने ब्रैकेट किया है, ये 61 डिग्री, उसको हमने क्या कंसिडर किया था, एक्स. तो फंक्शन जो है वो साइन एक्स के टर्म है, तो मैंने फंक्शन लिखा साइन एक्स. तो व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द साइन एक्स? So the f dash of x is nothing but the cos x. Next we are going to find out the value of f of a. So f of a भी f of x के टर्म में ही लिखते हैं. Instead of writing x we have to write down the a. तो f of a is nothing but the 60 degree, and हमें जो f of a लिखना है वो f of x के टर्म में लिखना है. मतलब f of x क्या है, sin x है, तो हम भी यहाँ पे sin x ही लिखेंगे, लेकिन x की वैल्यू हम a जो है वो a की वैल्यू पुट डाउन करेंगे. So a is nothing but the 60 degree, and you know the value of sin 60 degree, you learn it from the 10th standard trigonometry, that is root 3 by 2. And the next one, that is f dash of a. तो हमें क्या लिखना है, जो f dash of x का जो आंसर यहाँ पे था वही हम यहाँ पे लिखेंगे, सिर्फ a की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते. a is 60 डिग्री, तो यहाँ पे जो cos x है वो मैंने cos x लिख दिया. इंस्टेड ऑफ राइटिंग द x वी हैव टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 60. तो cos 60 की भी वैल्यू हमें पता है, दैट इज cos 60 डिग्री इज नथिंग बट द हाफ. ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इस टाइप की जो एग्जांपल है, ट्रिगो की जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में हमें h की जो वैल्यू है, वी हैव टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ h ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ रेडियन. हर बार देख लो कि डिग्री में हम h की वैल्यू नहीं लिखने वाले हैं, सिर्फ हमें वो रेडियन के टर्म में ही लिखना है. Now we have to write down the formula of solving this type of examples of the approximations. So f of a plus h is equals to f of a plus h into f dash of a. So f of 61 degree, a plus h की वैल्यू हमें यहाँ पे मालूम है, that is 61 degree, which is approximately equals to f of a की वैल्यू हमने पुट डाउन यहाँ पे फाइंड आउट की है, वो यहाँ पे मैंने पुट की, that is root 3/2 plus h is 0.0174. ये 4 रहता है, 5 भी रहता है. सो f dash of a इज़ हाफ, यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली थी. तो रूट 3 की वैल्यू भी हमें पता है, दैट इज़ 1.732/2 प्लस ये 0.0174/2. तो दोनों का बेस सेम है, तो मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया 2, एंड यहाँ पे जो नंबर्स है वो हम ऐसे ही लिखेंगे, दैट इज़ 1.732 प्लस 0.0174. तो उन दोनों का एडिशन करके हमें मिला 1.7494/2, एंड बाय डिवाइडिंग दिस वी गेट द आंसर, दैट इज 0.8747. सो दिस इज नथिंग बट द अप्रॉक्सीमेट. सो द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल इज नथिंग बट इट इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 61 डिग्री. द आंसर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक इज रॉन्ग, सो यू हैव टू करेक्ट दिस. सो आंसर इज 0.8747. Now see, the example number 2nd and 3rd is almost same. So I am going to solve the example number 3rd first, and you can easily solve this example number 2nd.
Before that, just you learn it in the 11th standard first chapter. That is 1 degree is equals to 60 minutes and 1 का हाफ मैंने लिया, that is half degree, तो इसका भी हाफ होगा, that is 30 degree. Remember this one, that is 1 degree. 1 degree is nothing but 60 minutes and a half degree is, इसका भी हाफ होगा, that is 30 minutes. 1 degree 60 minutes, half degree 30 minutes. तो यहाँ पे जो एग्जांपल है, दैट इज़ साइन 29 डिग्री एंड 30 मिनट्स. तो यहाँ पे हम x की जो वैल्यू है वो कंसिडर करने वाले हैं, वो दैट इज़ ये टोटल नथिंग बट द x, दैट इज़ 29 डिग्री एंड 30 मिनट्स. तो a प्लस एच क्या होगा, हम ये पूरा वैल्यू लेंगे क्योंकि हमें 29 डिग्री का तो आंसर का पता नहीं है, लेकिन 30 डिग्री हमें पता है साइन का, तो हम इसको 30 लेंगे. और ये जो है 30 से, अब ये 30 मिनट्स है तो मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो ये नथिंग बट द हाफ डिग्री. तो 30 में से हम अगर ये हाफ माइनस करें तो हमें ये टोटल वैल्यू मिल जाती है. तो ये आप खुद से सॉल्व करेंगे. आई एम गोइंग टू सॉल्व द थर्ड एग्जाम्पल. ये दोनों एग्जाम्पल सेम है, अगर ये आप थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो ये आपको समझ में आएगा. तो द एग्जाम्पल इज़ 60 डिग्री एंड 30 मिनट्स and given that is 1 degree is equals to 0.0175 रेडियन एंड √3 is equals to 1.732. तो हम ये टोटल वैल्यू जो है वो x करके कंसिडर करेंगे. सो x is equals to 60 डिग्री एंड 30 मिनट्स. x is nothing but the a plus h which is nothing but the $60 डिग्री प्लस 30 मिनट्स. तो यहाँ पे हम 30 मिनट्स को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो ये होगा हाफ डिग्री. तो 60 डिग्री एंड h इज इक्वल्स टू हाफ डिग्री. हाफ डिग्री मतलब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो हाफ इंटू ये जो 1 डिग्री की वैल्यू है उसका हाफ करेंगे. सो हाफ इंटू ये 0.0175 एंड सॉल्व करके हमें वैल्यू मिला 0.00875 रेडियन. सो दिस इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ h. Now see, first we going to find out the f of x. तो f of x हम find out करेंगे. तो f of x है cos x, because cos and ये जो है हमने वो कंसिडर किया था x, so cos x हमारा फंक्शन है. तो what is the डेरिवेटिव of cos x? It is minus sin x. तो ये दोनों हमें मिले. आप now we going to write down the value of f of a. So f of a is nothing, we have to compare it with the f of x. तो हम यही लिखने वाले हैं यहाँ पे, सिर्फ द वैल्यू ऑफ x इज चेंज बाय a. सो a का वैल्यू क्या है, हमने यहाँ पे लिया था 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री एंड cos 60 डिग्री इज नथिंग बट हाफ. आफ्टर दैट f डैश ऑफ a, अगेन वी हैव टू कंसिडर कंपेयर इट विद दिस वन. आंसर क्या आया है, माइनस साइन x. तो माइनस साइन x का वैल्यू हम a का वैल्यू पुट डाउन करेंगे, a इज़ नथिंग बट द 60 डिग्री. सो यहाँ पे हमें मिला माइनस साइन 60 डिग्री. साइन 60 का वैल्यू है √3/2 एंड वी पुटिंग द वैल्यू माइनस. नाउ सी, यहाँ पे हमें f ऑफ a प्लस h, द फॉर्मूला इज f ऑफ a प्लस h इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश ऑफ a. तो a प्लस h का वैल्यू जो है वो हम यही एग्जाम्पल में जो दिया है वो पुट करेंगे, दैट इज 60 डिग्री एंड 30 मिनट्स. तो f ऑफ a इज 60, h ऐसा ही रखा है एंड f डैश ऑफ a मतलब 60 डिग्री. नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू डायरेक्टली. सो f ऑफ 60 डिग्री इज नथिंग बट हाफ, प्लस h का वैल्यू हमने फाइंड आउट करके रखा था, दैट इज 0.0875. तो हमने वो यहाँ पे लिख दिया. एंड इसका जो वैल्यू है माइनस √3/2. तो इन दोनों का यहाँ पे √3 का वैल्यू हमने पुट किया है, दैट इज़ 1.732. तो हाफ एज इट इज़. नाउ दिस प्लस माइनस माइनस एंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इज 0.015155 अपॉन 2. अगेन द LCM इज base is same, so we taking the LCM as a 2. So 1 minus 0.015155 and after subtraction we get the value that is 0.984845 upon 2 and the answer is 0.4924. तो यहाँ पे f डैश f ऑफ 60 डिग्री 30 मिनट्स मतलब cos 60 डिग्री 30 मिनट्स का वैल्यू जो हमें मिला है वो है 0.4924.
The next example is that is tan 45 डिग्री एंड 40 मिनट्स. तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्या है वो थोड़ा सा आप ध्यान में रखो. यहाँ पे अगर 30 मिनट्स होता है, 60 मिनट होता है, तो वैल्यू निकालने के लिए वो बहुत इजी है. लेकिन अगर आप यहाँ पे 40 डिग्री लिखते हैं, क्या अगर एग्जांपल में 40 मिनट्स होता है, तो वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा अलग टाइप का अलग टाइप का एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना पड़ता है. सो tan 45 डिग्री एंड 40 मिनट्स हमें दिया है 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175. अब हम क्या करने वाले हैं, 1 डिग्री इज़ नथिंग बट द 60 मिनट्स. 1 डिग्री इज़ नथिंग बट द 60 मिनट. तो हमें 40 मिनट्स का अगर वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, 40 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे. ये जो 60 है इससे हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलती है तो वो हमारा आंसर होगा. तो 0 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 3 ज़ा 6. तो हमें जो आंसर मिला है वो है 2/3 डिग्री. तो हमने मिनट को ऐसे डिग्री में कन्वर्ट किया. अगर यहाँ पे 20 आता है तो भी हम ऐसे ही करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 60. अगर 10 आता है 10 मिनट्स तो भी हम ऐसे ही करेंगे, दैट इज़ 10/60. तो अगर 30 और 60 के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर यहाँ पे आता है तो हमें क्या करना है, दैट इज़ डिवाइडेड बाय 60. नाउ सी द थर्ड एग्जाम्पल. we start with this one. So tan 45 डिग्री एंड 40 मिनट्स. तो ये टोटल हमारा x होगा. सो x इज इक्वल टू 45 डिग्री 40 मिनट्स. तो a प्लस h 45 डिग्री प्लस 40 मिनट्स, 45 degree as it is, and we using this value which we calculate here, that is 2/3. 40/60 that is nothing but the 2/3 degrees. Now both the values are in degree. So यहाँ पे a क्या है 45 डिग्री है और h is 2/3. So 2/3 into 0.0175, because we have to convert this degree into radian because the value of h is always in the radian. So 0.0350/3 and the answer is 0.011667 radian. So this is all about the values of h. Now see f of x. The function is in terms of tan x, and so its derivative is sec square x. So f of a, that is f of 45, because the value of a is 45, and we have to write down tan x. x के इस जगह पे हम 45 लिखेंगे, and you know the value of tan 45 degree is nothing but 1, and the derivative of f of a is nothing but f dash of 45 degree, and the sec square x की टर्म में हम उसको लिखेंगे. So sec square 45, and you know that is the sec 45 is root 2, and since there is a square you have to take the square of the root 2, which is nothing but 2. Now यहाँ पे फॉर्मूला हम लिखेंगे, that is f of a plus h is equals to f of a plus h into f dash of a. You know the value of a plus h is 45 degree and 40 minutes, and so we putting the value of f of a, that is 1, h we calculated, that is 0.011667 into f dash of a is 2, and so after taking the product of these two we get here 0.02334 and plus 1. So we take the addition and we get 1.023334, and since the last number is 4, which is less than 5, so the number is as it is. So 1.0233, this is the answer of tan 45 degree and 40 minutes. So this is the approximate value of this. And similarly the question number 3rd is consists of some other type of examples which are in terms of inverse. So just look at the first example, that is tan inverse. Question number 3rd, example number 1st, tan inverse 0.999. So there are almost 3 examples in the question number 3rd, and almost all the 3 examples are same. See how? So you know that is tan 45 is 1, that is pi by 4 is 1, and so we write this number like this way, that is tan
tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो है 0.999। तो इसका जो इसके नज़दीक का जो परफेक्ट नंबर है वो है 1। सो 1 माइनस 0.001 देन वी गेट दिस नंबर। सो यहाँ पे a प्लस एच का जो वैल्यू हमने निकाला था दैट इज़ 1 माइनस 0.001। तो a का वैल्यू है 1 एंड h का वैल्यू है माइनस 0.001। द फंक्शन इज इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x एंड इट्स डेरिवेटिव इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम f ऑफ a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दैट इज़ f ऑफ 1 विच इज़ इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 एंड यू नो द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 इज़ नथिंग बट पाई बाय 4। यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था। नाउ f dash of a is equals to f dash of 1 is equals to 1 upon we have to write down like this way 1/1 plus x square. The value of x is nothing but a, that is 1. So 1 square is 1 plus 1, that is 2, that is half. And now we are going to put down the value in the formula. So the formula is f of a plus h is equals to f of a plus h into f dash of a. So 0.999 is equals to the value of this one is pi by 4, h is minus 0.001 and f dash of a is half. तो यहाँ पे जो पाई है, पाई का वैल्यू हम रखेंगे 3.1416। अगर हम 3.14 लिखते तो आंसर थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ पे 49 की जगह भी 45 समथिंग आ जाता है बिकॉज we finding the approximate value, so we can write this one also, that is 3.1416 divided by 4, so minus 0.0005। तो यहाँ पे ये सॉल्व करके हमें आंसर मिला है 0.7854 माइनस 0.0005 एंड आफ्टर टेकिंग द सब्सट्रैक्शन वी गेट 0.7849। so this is the answer of this one. Now see the second example. That is cot inverse 0.999 and we have to solve it same as above. So the changes is only one, that is यहाँ पे f of x होगा cot inverse x same as this one and f dash of x होगा minus 1/1 plus x square because you know the value of derivative of cot inverse is same this one, that is 1/1 plus x. The only change is minus sign is there. f of a is equals to f of 1, so cot inverse of 1 is pi by 4 एंड यहाँ पे अगर हम वैल्यू 1 पुट डाउन करेंगे तो हमें माइनस हाफ मिलेगा. नाउ वी हैव टू पुट ऑल दीज वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्टेप्स ओमिट करके डायरेक्ट लिखा है. तो एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, ये वैल्यू हमने पुट डाउन की यहाँ पे, प्लस द वैल्यू ऑफ एच इज़ माइनस यहाँ पे जो ऊपर वाला जो हमने एग्जांपल देखा था उसमें जो वैल्यू है सेम वही वैल्यू, बिकॉज एग्जांपल इज सेम तो वैल्यू भी सेम होगा. एच इज़ माइनस 0.001 एंड ए इज़ 1. तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट डाउन किया है. तो पाई बाय 4 प्लस माइनस 0.001 इंटू माइनस हाफ. सो पाई बाय 4 प्लस, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होगा, एंड डिवीजन इज़ 0.0005 एंड यू नो द वैल्यू ऑफ पाई बाय 4 अभी हमने इस एग्जांपल में फाइंड आउट किया था. सो पाई बाय 4, सो आफ्टर डिवाइडिंग वी गेट दैट इज़ 0.7854. तो वो सेम वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है, दैट इज़ 0.7854 प्लस ये वाला वैल्यू, एंड आफ्टर टेकिंग द एडिशन वी गेट दैट इज़ 0.7859. तो ये दोनों एग्जांपल्स नियर अबाउट सेम है. एंड नाउ वी सी द third example of this question, that is tan inverse of 1.001. तो ये टोटल वैल्यू है x इज इक्वल्स टू 1.001. तो इसको हम स्प्लिट अप करेंगे 1 प्लस 0.001. तो a प्लस h का वैल्यू होगा दैट इज सेम, दैट इज़ 1 प्लस 0.001. तो यहाँ पे a होगा 1 एंड द वैल्यू ऑफ h इज 0.001. Now see the f of x is in terms of tan inverse of x. So you know that its derivative, that is 1/1 plus x square. F of a is f of 1 which is equals to tan inverse of 1, that is nothing but the pi by 4, and f dash of a is equals to f dash of 1. Same value we have to put down in the 1/1 plus x square, so 1 square,
एडिशन करके हमें मिला हाफ. एंड नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू हियर. तो सेम है जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था इन प्रीवियस एग्जांपल. तो 3.1416 एंड यहाँ पे ये सॉल्व करके हमें मिला था दैट इज़ 0.0005. सो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते तो हमें आंसर मिलता है 0.7854, जो हमने अभी जो एग्जांपल सेकेंड लिखा था उसने भी हमने ये लिखा था, एंड प्लस 0.0005. So after taking addition we get 0.7859. So this is the answer of tan inverse of 1.001 is equal to हमें मिला है 0.7859. So this is all about the examples from the approximations. Actually this concept is not for your board exam, but the examples will ask in CET or in physics numericals or chemistry numericals. So this concept is enough for the solving that to solve the examples in the physics and chemistry. So in the next lecture we will solve the exercise 2.4. Thank you.